Amen. Amen. Somebody was arguing with me saying, no, it's not God who's doing it, it's devil. I was like, wow. So that means the roles have been changed. Today God is making people sick because that's what they believe, and devil is healing people. I said, wow. Which Bible do you read? तो कोई मुझसे कह रहा था नहीं ये परमेश्वर ठीक नहीं करता है, शैतान ठीक करता है। मैं कहता वाह वाह, अब दोनों ने कुर्सियां बदल दी हैं। तो परमेश्वर आज लोगों को बीमार करता है, जो कि वो लोग मानते हैं। तो परमेश्वर बीमार कर रहा है और शैतान चंगा कर रहा है। बहुत ही बढ़िया डॉक्ट्रिन है। So if you, sir, are watching me, I pity you right now in Jesus' तो name. श्रीमान अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे दया आ रही है आप पर बहुत। Amen. Because my Jesus that I serve has never changed. He is the same yesterday, today, and forever. And every Sunday He gives an evidence that He is the healer. क्योंकि जिस यीशु की मैं सेवा करता हूं वो नहीं बदला, कल आज और हमेशा एक सा है। और हर रविवार यहाँ पर वो सबूत देता है कि वो आज भी चंगा करता है। Amen. आमीन। And if there is anybody who's skeptical, just wait for some time. He will give you an evidence that He's the healer. और अगर यहाँ पर कोई है जिसको शक है कि यीशु चंगा करता है या नहीं, थोड़ी देर और रुक जाए, वो आपको सबूत देगा अभी। Amen. You know, a couple, a friend of ours, they had a reformed background, and that means that they believe that God doesn't heal anymore. And they came here, and the sister had a problem. I don't know what the problem was. Do you remember? Okay. She had a problem for many years. Incurable disease. और एक कपल हैं जो हमारे मित्र हैं, जब वो आए थे तो वो रिफॉर्मर्स बैकग्राउंड से थे, और वो ये जो लोग मानते हैं कि परमेश्वर आज चंगा नहीं करता। और जब वो बहन यहाँ आई थी तो उनको एक लाइलाज बीमारी थी, बहुत सालों से थी। And every Sunday they used to come, they used to go home offended. और हर रविवार जब वो यहाँ आते थे तो वचन सुनने के कारण वो नाराज होकर घर जाते थे। Because it was completely opposite to what they had heard. They had heard that God will make you sick, He will humble you, keep you humble all His life. क्योंकि जो उन्होंने सुना था उसकी बिल्कुल विपरीत बात हम सिखा रहे थे। उन्होंने सुना था कि परमेश्वर तुम्हें बीमार करता है, वो तुम्हें नम्र करना चाहता है, जिंदगी भर नम्र रखना चाहता है। And they believe the baptism of the Holy Spirit is not for everyone. If God wants you to be baptized, God will baptize you. और वो मानते थे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक के लिए नहीं है, अगर परमेश्वर चाहता है तो आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा। And one day, एक दिन while we are praying for people to get baptized, जब हम प्रार्थना करते कि लोग अन्य भाषा में बोले, they both of them got baptized. वो दोनों बोलने लगे। So they're like, और वो सोच रहे थे हम क्या कर रहे हैं। Then, फिर as she used to go for routine checkup, she went to the doctor and found out she's absolutely healed. जब वो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती थी तो एक दिन गई और मालूम हो कि वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। So all her friends in the reformed background are saying, no, that's not right teaching. But she said, what should I do? I'm healed. तो उनके जितने भी रिफॉर्म सर्कल के दोस्त थे वो कहते नहीं ये शिक्षा सही नहीं है। तो वो कहती मैं करूं क्या, लेकिन मैं तो ठीक हो गई हूं, इसका क्या करूं मैं। Don't let your head be so big that it comes in the way of the Lord. अपने सर को ज्ञान से इतना बड़ा मत फूलने दो कि वो परमेश्वर के काम के रास्ते में आ जाए। When Jesus said, जब यीशु ने कहा, son, your sins are forgiven you. जब यीशु ने कहा बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। And they were Pharisees. और फरीसी आपस में बात कर दी, Who is he? Who is he? ये होता कौन है, अपने आप को समझता कौन है, To forgive sins. पाप क्षमा करेगा ये। There are many Pharisees in the church today. बहुत से फरीसी कलीसिया में भी हैं आज, Who will speak against the work of God. जो परमेश्वर के काम के विरोध में बोलते हैं। You know, there are people. Can I be honest in this place? मैं ईमानदारी से बात कर सकता हूँ। There are people who will tell you how to run a church when at home all they do is watch television and eat chips. I say you start a church and make it an example so that other people can follow. Otherwise, just shut up. हमारे जमाने में ऐसे बहुत से लोग भरे हुए हैं जो खुद टीवी पे देखकर चिप्स खा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि कैसे कलीसिया चलानी चाहिए। तो मैं कहता हूं तुम कलीसिया शुरू करो और एक अच्छा उदाहरण बनो दूसरों के लिए, नहीं तो मुंह बंद करके बैठो घर पे। There are people teaching Virat Kohli. अरे इतनी अच्छी बॉल थी, ऐसे मारना था, ऐसे. They don't know how to hold the bat.
ऐसे लोग हैं जिनको बैट पकड़ना नहीं आता पर मैच देखते हुए बोलते हैं विराट कोहली को ये शॉट मारनी चाहिए थी. Jesus said, they will know you by your fruits, not by your talks, by your fruits. यीशु ने कहा तुम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाओगे, अपनी बातों के द्वारा नहीं. Sadducees only had teaching, no evidence. Jesus brought evidence that God is with him. सदूकियों के पास केवल खाली बातें थी, ज्ञान की शिक्षा की बातें थी, लेकिन यीशु फल लेकर के आया, प्रमाण लेकर के आया कि Amen. परमेश्वर उसके साथ है. Mark 16:20 says, and disciples went everywhere preaching the word, and God went with him, confirming the word with signs and wonders that followed. मरकुस 16:20 में लिखा है कि चेले हर जगह गए वचन का प्रचार करते हुए और परमेश्वर उनके साथ था, उस वचन का सबूत देता हुआ, चंगा करता हुआ, चिन्ह चमत्कार करता हुआ. So these Pharisees are saying, who is he that he can forgive sins? Jesus said, what is easy? What is he doing? He is giving an evidence. So जब यीशु ने कहा कि इसके पाप क्षमा हो गए तो फरीसी कह रहे हैं ये है कौन अपने आप को समझता है जो कह रहे हैं पाप क्षमा हो गए. तो यीशु क्या करता है, क्या कहना आसान है, वो सबूत दे रहा है. Evidence. सबूत. There are so many of you who are an evidence that Jesus Christ is alive. आप में से बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो सबूत हैं कि यीशु मसीह जिंदा है. Jesus Christ, don't allow these stupid teachings to influence you. इन It मूर्खता has से killed so many Christians. इन मूर्खता से भरी शिक्षाओं को अपने जीवन पर प्रभाव डालने मत दो. इनके वजह से बहुत सारे मसीह लोग मर गए हैं. God is a healer. परमेश्वर चंगा करता He है. heals today. वो आज भी चंगा करता है. Amen. आमेन. He heals today. वो आज भी चंगा करता है. If you have come here with a sickness, अगर आप यहाँ बीमारी के साथ आए हो, be ready to receive your healing. तैयार रहो अपनी चंगाई पाने के लिए. आज His word says, with long life I will satisfy you उसका and वचन- show you my salvation. उसका वचन कहता है लंबी आयु से मैं तुझे संतुष्ट करूंगा, अपने उद्धार की भरपूरी दिखाऊंगा. Amen. I'm in a good mood. मैं एक अच्छे मूड में हूं. I just hate when people discredit what God is doing. मुझे बस नफरत है जब लोग परमेश्वर जो काम कर रहा है उसको बेकार बोलते हैं, उसको खोखला बोलते हैं. We serve a living God. हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते We serve a living God. हैं, एक जिंदा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. Amen. आमेन. When we see people who are on their deathbed getting healed, I mean, like, that's the greatest joy to serve Lord Jesus Christ of Nazareth, seeing that He's the same Almighty God who says, I am. जो लोग मरने की दशा से निकलकर बाहर आते हैं, बीमारी के बिस्तर से उठकर बाहर आते हैं, उनको देखना सबसे बड़ा आनंद है जीवन का. यीशु की सेवा करने का सबसे बड़ा आनंद है ये. Amen. Hallelujah. Praise God. Romans 10:17. रोमी 10 उसका 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है. If you only hear worship songs अगर आप केवल आराधना के गाने सुनते हो and you don't spend time in the word, और वचन में समय नहीं देते, your capacity of faith will be low, तो आपकी विश्वास की क्षमता नीची रहेगी and you will not be able to resist the enemy. और दुश्मन का सामना नहीं कर पाओगे आप. You need faith आपको to विश्वास resist चाहिए. the enemy. दुश्मन का सामना करने के लिए आपको विश्वास चाहिए. You need faith आपको विश्वास for चाहिए. everything in the kingdom. राज्य में जो कुछ है उस सब For के लिए. without faith, it is impossible to please God. क्योंकि बिना विश्वास के असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना. Amen. आमेन. Some people say, oh, Pastor, my faith is not like that person. So the Bible says faith comes by hearing. So, hear it. कुछ लोग कहते हैं अरे पास्टर मेरा तो विश्वास उतना नहीं है, तो बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है, तो सुन लो. What's stopping you? आपको रोकता क्या है फिर? If you're hungry, अगर आप भूखे हैं, open the fridge and eat. फ्रिज खोलो, खाना खाओ. Open the word and receive faith. वचन खोलो और विश्वास ले लो. Amen. आमेन. Faith comes by विश्वास